everyone, welcome back to my channel. This is Parneet. I hope you all are hale and hearty. So today in this video lesson we are going to discuss another important tense which is past perfect continuous tense. ਆਪਾਂ already discuss ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ present perfect continuous tense। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ present perfect continuous tense ਉਹ ਵਾਲਾ tense ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ past ਤੋਂ start ਹੋ ਕੇ present ਤੱਕ ਉਹਦਾ link ਹੁੰਦਾ ਹੈ। But today we are going to discuss past perfect continuous tense means कोई काम जिहड़ा past तो start होया means भूतकाल तो start होया ते past दे विच ही खत्म हो गया उसका कोई लेना देना नहीं है present वर्तमान दे नाल वो वाले सारे sentences fall करेंगे in the category of this particular tense. Okay guys, so before moving further I have a humble request, please subscribe to my channel. वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ यूजफुल लगती है, हेल्पफुल लगती है, उसमें शेयर करिया करो and don't forget to hit the like button. So okay, without wasting any more time, let's get started. देखो past perfect continuous tense दी सब तो पहला ਆਪਾਂ पहचान किस तरह करांगे ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ sentences fall ਕਰਨਗੇ in this particular category ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ end ਤੇ ਆਏਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਹੀ ਸੀ, ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ sentences ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ tense ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀ that was past continuous tense है ना, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀ, ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਹੀ ਸੀ, ਰਹੇ ਸਨ। however ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ that is ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ time ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। time ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ past continuous tense ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ ਲਾਈਕ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ that was past continuous tense, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੋਂ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। क्लियर? सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। दोनों की पहचान स्टार्टिंग दे विच सेम हुंदी है बट जिहड़ा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जांदा इहदे विच टाइम आ जांदा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई भी होवे, प्रेजेंट होवे, फ्यूचर होवे, पास्ट होवे, उन्हां दे विच टाइम आंदा ही आंदा। टाइम मतलब सिंस ते फॉर। हुण आपां ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिंस कित्थे लगदा है, फॉर कित्थे लगदा है। अगर तुहानूं इस दे विच कन्फ्यूजन है सो गाइज आई रिकमेंड यू कि तुसीं पहला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नूं देखो, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल ते हैगी है, उसनूं देखो, ध्यान नाल समझो जो चीज़ां तुहानूं नहीं समझ आ रही उस तो बाद मूव ऑन करो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दे, फिर तुहानूं ये भी ईजीली ते वधिया तरीके नाल समझ आएगा। क्लीयर? ओके, टोन का ध्यान रखना है, टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है, ठीक है। हुण पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दी अगर आपां डेफिनेशन देखनी होवे तां ओह की होएगी, ये वो टेंस हुंदा है जिहड़ा सानू दसदा shows that an action or event, कोई भी काम, कोई भी इवेंट है ना, कोई वर्क, कोई एक्शन, कुछ भी सी जिहड़ा that started and ended in the past, मतलब वो शुरू भी होया ते खत्म भी हो गया किथे पास्ट दे विच, उसदा हुण प्रेजेंट दे नाल, वर्तमान दे नाल कोई लेन देन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई काम नहीं है। ओके, पर वो पास्ट दे विच की होया सी कंटिन्यूड अप until another time, मतलब कुछ टाइम पीरियड ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਲੌਂਗਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੌਂਗਰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਹੈ ਨਾ। 2 घंटे तो वेट कर रहा सी, 3 घंटे तो मीह पै रहा सी, मतलब थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन की जो आप गल करते हैं, लंबे समय की गल करते हैं, वो वाले सेंटेंसिस ये वाले टेंस की कैटेगरी दे विच फॉल करते हैं। क्लीयर? ओके, आई होप इत्थे तक तुहानूं क्लीयर हो गया, बट अगर नहीं होया डोंट वरी गाइज, हुण आपां इहनूं होर वधिया तरीके नाल समझदे हां। जिहड़े भी डाउट्स ने हुण बिल्कुल दूर हो जाणगे बिकॉज हुण आपां इहनूं समझदे हां टाइमलाइन दे नाल। हियर इज द टाइमलाइन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर तो आप कुछ लेना देना नहीं है, प्रेजेंट तो भी नहीं है, आप पास्ट की गल करांगे। मीनस कोई काम, सपोज कोई काम इत्थे स्टार्ट होया ते वो लंबे टाइम लिए चलिया ते इत्थे ही खत्म हो गया, ठीक है। देखो अगर मैं कहा सपोज मैं किते काम ते या हॉस्पिटल या किते भी मैं पहुंची 11 बजे है ना, कोई मेरी वेट कर रहा सी, या डॉक्टर कदों आया सी, डॉक्टर 8 बजे आ गया सी, ठीक है। डॉक्टर 8 बजे आ गया सी या 9 बजे आ गया सी, तो 8 तो 11 विच दे 11 बजे दे विच एक लंबा टाइम है, ठीक है। वो वाला काम हुण वजे होए ने 2, हुण वजे होए ने 3, हुण मैं गल कर रही हां प्रेजेंट दे विच, मतलब मैं बोल के कोई पास दे काम दी गल तुहानूं दस रही हां। सपोज
हॉस्पिटल दे विच मैनू वेट करनी पई, या ये लगा लो मैं हॉस्पिटल 8 बजे पहुंच गया पर डॉक्टर किन्ने बजे आया 11 बजे आया, तो मैनू इन्ना लंबा समा उत्थे बैठ के वेट करनी पई है ना। मैं इन्ने घंटे डॉक्टर दी वेट कर रहा सी, मैं 3 घंटे तो डॉक्टर दी वेट कर रहा सी, ਉਹ 4 घंटे तो डॉक्टर ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਟ ਉਹ ਚੱਲਣ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਂਗਰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, that sentences fall in the category of past perfect continuous tense। ਕਲੀਅਰ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਬ ਟਾਈਪਸ। ਸਬ ਟਾਈਪਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, सेकेंड इज नेगेटिव नावाचक, थर्ड इज इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, मीनस जिथे कोई क्वेश्चन पूछा जाता की जिथे आ जाता किथे आ जाता है ना, ਉਹ वाले सेंटेंसेस। देखो उस तो पहला हल्का जिहा ਆਪਾਂ रिकॉल करते हैं कि सिंस किथे लगेगा, फॉर किथे लगेगा। सिंस लगता है पर्टिकुलर ਤੁਹਾਨੂੰ पॉइंट दिता होया है, ठीक है, मीनस उन्होंने देता 2 बजे तो 3 बजे तो, पर्टिकुलर टाइम देता सवेर तो रात तो, फेबररी तो, है ना, इस तरह संडे तो, मंडे तो, थर्सडे तो, इस तरह जो पर्टिकुलर पॉइंट मैंशन होंदा है उत्थे आपां सिंस यूज करते हैं। बट when duration is mentioned, है ना, जो ड्यूरेशन दिती होवे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ना दिता होवे, लाइक 3 दिन तो, केड़े 3 दिन तो ये क्लीयर नहीं है। 2 घंटे तो मीह पै रहा सी, केड़े 2 घंटे तो नॉट क्लीयर, है ना। मैं 4 घंटे तो डॉक्टर की वेट कर रहा सी, किन्ने 4 घंटे तो किन्ने बजे तक वो मैं नहीं दसिया। 3 दिन तो, 2 महीनों तो, 4 साल तो, मैं 10 साल तो इत्थे रह रही हाँ, पर्टिकुलर में नहीं मैंशन किया। 1990 2000 में नहीं मैंशन किया। जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मैंशन करनी है देन वी यूज सिंस, बट फॉर द ड्यूरेशंस वी यूज फॉर। क्लियर। ओके, नाउ हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर। देखो ये टेंस बहुत सिंपल टेंस है। आप पहला डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम देखो जो परफेक्ट की गल आती है, परफेक्ट दे विच आपां यूज करते होंगे हैज, हैव या फिर हैड यूज करते हैं, है ना। हैज ते हैव आपां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दे विच ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। हुण पास्ट परफेक्ट की गल आती है तो पास्ट दे विच की यूज होएगा हैड। ये तो हो गया परफेक्ट वाला सैक्शन। जो गल आएगी कॉन्टिन्यूअस दी, कॉन्टिन्यूअस की होंगे जो कोई चीज़ लगातार चलती है ना, आप कह दें सपोज आप हार्ट बीट लगा लियो, धक 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 लगातार होंगी रहती है। जिथे भी कॉन्टिन्यूअस की गल आती है, चाहे वो सिंपल सी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गए, उत्थे हमेशा यूज होएगी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये चीज़ां तुसीं ध्यान रखनियां ने। क्लीयर। हुण देखो स्ट्रक्चर की होएगा। सब तो पहला सब्जेक्ट की गल करांगे। सब्जेक्ट आपां नूं पता मेन पर्सन जिहड़ा हुंदा वो सब्जेक्ट हुंदा। देन आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इहदे विच हैड यूज करना है, ठीक है। पास्ट है, आपां नूं कोई सिंगुलर कोई प्लूरल दा चक्कर नहीं, सारे दे नाल हैड ही यूज होएगा। देन आएगी बीन। यस, बीन का ध्यान रखना है, इत्थे बीन यूज करना है। आफ्टर दैट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट आएगा। हुण इस तो बाद भी कुछ हो आएगा, की आएगा मैं पहला भी दसिया, दैट इज टाइम, क्योंकि तो टाइम मेंशन हो गया ना। देन वी यूज सिंस फॉर, किथे सिंस यूज करना है, किथे फॉर करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। उसके विच आ जाएगा एंड दे विच टाइम। टाइम मतलब सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, इस तरीके नाल। क्लियर। सो देखो ये सेंटेंसेस देखो। फॉर इंस्टेंस रमन 2 घंटे तो पढ़ रहा सी, या रमन 2 घंटे तो पढ़ाई कर रहा सी, है ना। सब तो पहला आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मेन पर्सन जिसकी गल हो रही है रमन। सब्जेक्ट इज द रमन। ओके। देन हेल्पिंग वर्ब की है हैड, आप हैड यूज कर लिया। उस तो बाद बीन, बीन आ गया। देन वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING, पढ़ रहा सी। पढ़ना की हुंदा ऑब्वियसली स्टडी इज द इंग्लिश की है स्टडी, स्टडी दे नाल ING, तो स्टडिंग हो गया। उस तो बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है जी, मैं कहा वो साइंस पढ़ रहा सी इंग्लिश, तो फिर स्टडिंग इंग्लिश, स्टडिंग साइंस आ जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर होंगे आप लगाने, अगर नहीं होंगे आप स्किप कर देना, बिकॉज ऑब्जेक्ट की होंगे बचिया खुचिया समान होंगे। ओके। देन इज सिंस या फॉर। हुण देखो फॉर इत्थे लगाया, फॉर क्यों आया? उन्होंने कहा 2 घंटे तो, मतलब ड्यूरेशन मेंशन है 2 घंटे तो, प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड फॉर। कितने घंटे तो 2 आवर, दैट इज टाइम। सो रमन हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। मैं सवेर तो सफाई कर रही सी। सवेर तो, सवेर टाइम आ गया,
तो आ गया, ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਹੀ ਸੀ, ਰਹੇ ਸਨ, ਰਹੀ ਸੀ आ गया। पहचान क्लीयर हुई, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया कि ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਦ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ I, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ had, then been, then वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल ing। हुण सफाई करना, क्लीनिंग, मॉपिंग, डस्टिंग, कुछ भी डिपेंड करता है किस तरह की सफाई। सो क्लीन प्लस ing, क्लीनिंग। देन टाइम, मॉर्निंग, सवेर दसता, मॉर्निंग, प्रॉपर पॉइंट मेंशन करता उन्होंने। सो वी यूज्ड सिंस एट द टाइम मॉर्निंग। सो आई हैड बीन क्लीनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सवेर तो मीह पै रहा सी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। 2 घंटे तो मीह पै रहा सी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। क्लीयर, आई होप तुहानू ये वाला डिफरेंस, ये वाली चीज़ां क्लीयर हो चुकियां ने। नैक्सट इज नेगेटिव सेंटेंसिस। नेगेटिव सेंटेंसिस हुंदे ने नावाचक सेंटेंसिस। जो नेगेटिव सेंटेंसिस की गल आउंदी है, इस तो ही समझो बहुत ईजी है, उहदे विच कुछ नहीं करना हुंदा। सैकेंड टाइप इज द नेगेटिव, उसदे विच सिर्फ हैल्पिंग वर्ब ते बीइंग दे विच की आ जाता है, नॉट आ जाता है, क्योंकि नहीं की गल हुई है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, देन वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम रिमेन्स द सेम। देखो अगर यही सेंटेंस आप बनाइए, रमन 2 घंटे तो पढ़ नहीं रहा सी, या रमन 2 घंटे तो नहीं पढ़ रहा सी। सो रमन हैड बीन दे विच की आ जाएगा, नॉट। रमन हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। रमन 2 घंटे तो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा सी। रमन हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। मैं सवेर तो सफाई नहीं कर रही सी। आई हैड नॉट बीन क्लीनिंग सिंस मॉर्निंग। मीन सवेर तो नहीं पै रहा सी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिर्फ हैड ते बीन दे विच की आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। क्लियर? सो यस, थर्ड टाइप आप डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव इक्वल स्ट्रक्चर फिर देख लो, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, बस हैड ते बीन दे विच नॉट आ जाएगा। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। क्लियर? लास्ट थर्ड टाइप इज इंटैरोगेटिव। जो कोई प्रश्न पूछा जाता है, मीनस जो की कह के गल होंदी है, या फिर जो WH फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। पहला देखो सिंपल वाला, इस दे विच असी की करना हुंदा है, हैल्पिंग वर्ब जिहड़ा हुंदा है वो सब तो अगे आ जाएगा। मीनस मैं तुहानूं हमेशा दसदी हां, जदों भी इंटैरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंसिस की गल हुंदी है, उहदे विच हीरो कौन बनदा है? हीरो वही हुंदा है ना जिहड़ा मेन पार्ट प्ले करदा है, मीनस अगे आ जांदा है। मीनस हैड हीरो बन जाता है, हैड सब तो अगे आ जाएगा। हैड सी उहनूं आपां अगे ले आए, हैड नूं जाके आपां इत्थे लगाता। सो सब तो पहला हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करांगे, देन वी यूज सब्जेक्ट, देन नॉट है आएगा, अदरवाइज स्किप कर देंगे। बीन, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम एंड पीछे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, हैड अगे आ जाएगा एंड पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यही डिफरेंस है। ओके, सेंटेंस देखो कि बच्चे 4 घंटे तो खेल रहे सन। की मैं क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन मार्क आ गया, पीछे रहे सन है एंड तो आ गया। सो कैटेगरी तो वही है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दी, बट केड़े वाली है? इंटैरोगेटिव है। कि बच्चे 4 घंटे तो खेल रहे सन। सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सेंटेंस किद्दां बनेगा? सब तो पहला हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट बच्चे, चिल्ड्रन, नॉट नहीं है, देन बीन, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ing, खेड, खेडना की हुंदा, प्ले, ing, प्लेइंग, देन ऑब्जेक्ट नहीं है, ग्राउंड हुंदा, इन द ग्राउंड है ना, वो चीज़ां फिर ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। देन सिंस या फॉर। हुण देखो 4 घंटे तो प्रॉपर टाइम मेंशन नहीं है, बट ड्यूरेशन इज मेंशन, सो आप यूज किया फॉर। 4 घंटे तो 4 hours, पीछे क्वेश्चन मार्क। सो हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर 4 hours, पीछे क्वेश्चन मार्क। क्लियर? हुण देखो ਜਿਹੜੇ इंटैरोगेटिव टाइप ਹੁੰਦੀ है, ये ਆਪਾਂ दो तरह ਨਾਲ डिस्कस करते ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ हैड, है ना, ਉਹ यूज करते हैं। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ WH फैमिली आ जाती है। WH फैमिली मतलब वेयर, किथे, वाई, क्यों, व्हेन, कदों, व्हाट, की। ठीक है, ये चीज़ां ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ आ जांदियां ने। ਜਦੋਂ WH फैमिली इन्वॉल्व हो जे ਤਾਂ ਉਹ फिर वो वाली चीज़ हीरो बन जाती है, वो हैड तो भी अगे आ जाता है। मीनस इत्थे असी WH फैमिली यूज करते हैं, दैन असी यूज करते हैं हैड, दैन सब्जेक्ट, बाकी वाला रिमेन्स द सेम। अगर हम मैं पूछा कि बच्चे 4 घंटे तो खेल रहे सन, ये तो की वाला सिंपल सेंटेंस है, असी इस दे अकॉर्डिंग बनाता। अगर मैं पूछा
ਬੱਚੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੀਨਸ ਵੇਅਰ। ਬੱਚੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੋਂ, ਵੈਨ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਟ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਅਰ, WH ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਵੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿमेन्स द सेम, ਵੇਅਰ हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है, ਕੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸਨ, what had children been playing for 4 hours। ਬੱਚੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ WH ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। 3 ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਫਰਮੇਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। ਐਂਡ ਗਾਇਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਸਿੰਪਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਚਾਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬਟ देयर ਆਰ ਡਿਫਰੈਂसेस ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਸ ਫॉर ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਰਾਤ ਤੋਂ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟਸ, ਐਨੀ ਕੁਐਰੀਜ਼, ਡੂ ਰਾਈਟ ਮੀ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ, please subscribe to my channel. Don't forget to hit the like button and share my video with your friends and family members as well. Thank you so much. Bye bye. Take care.